Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, today I'm going to continue with Unit 13 of your English grammar book, Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 56. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 56, Unit 13, Degrees of Comparison. Students, in this unit, we have learned that we use adjectives to compare person, animals or things. And we use degrees of comparison when we compare one person or thing with another. There are 3 degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree and the superlative degree. We use the positive degree when there is no comparison, or when we want to show 2 things or 2 persons equal, then we use the positive degree. And before the positive degree, students, we use a, an, very, as, words like this. And the second is comparative degree, students. We use the comparative degree when we want to compare 2 persons or 2 things. And the comparative degree is always followed by the word then. Then the third degree, students, is the superlative degree. This is the greatest degree. And when we use superlative degree when we want to compare more than 2 persons, 2 things or 2 animals. More than, बेटा 2 से ज्यादा जब हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. And remember, we always use the word the before the superlative degree. In my last video, students, I had explained the first rule for forming the comparative and superlative degree from the positive degree. And rule number A was that to form the comparative degree, we add ER to the word, and to form the superlative degree, we add EST to the positive degree. So we had done the first rule. Now students, today I'll explain the second rule. But let's revise the first rule A, that is we add ER and EST to form the comparative and superlative degree. The positive degree, bold, becomes bolder in comparative degree and boldest in superlative degree. The positive degree is small. If we add ER to it, it will be smaller, that is the comparative degree. And if we add ES to it, it will be smallest. Then the third is kind. And if we add ER to it, we form the comparative degree kinder. And if we add ES to it, we form the superlative degree kindest. The fourth positive degree is dark. If we add ER, we form the comparative degree darker. And if we add EST, we form the superlative degree darkest. The fifth positive degree is clever. Now, if we add ER, we form the comparative degree cleverer. And if we add EST, we form the superlative degree cleverest. Now, students, the second rule to form the कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. रूल ए में हमको ER और EST ऐड करना था कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए. नाउ इन रूल बी, इफ पॉजिटिव डिग्री ends in E, we add only R and ST. Now,
This is the second rule, students. And this rule says if the positive degree ends in E, अगर स्पेलिंग के लास्ट में ई है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में खाली आर ऐड करना है और सुपरलेटिव में एस टी. पॉजिटिव comparative and superlative. Now, students, the first spelling is noble. Now, look at the spelling of noble. N-O-B-L-E, this is the positive degree. And beta, in the spelling of noble, the last alphabet is E. Last alphabet क्या है बेटा? E है noble की spelling में. So what we have to do? इससे पहले में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना है तो हमको ER और सुपरलेटिव में EST ऐड करना है. बट इस स्पेलिंग में ऑलरेडी E इज देयर. E तो पहले से ही है. सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना है. हमको बस इसमें क्या ऐड करना है बेटा? Add R, add ST. This you need to remember, students. So, noble, the comparative degree क्या हो जाएगी बेटा? Noble, we simply have to add R, so it will be nobler. Noble, nobler. And then the superlative degree will be noble लिखा और उसमें क्या ऐड किया? ST. So, noble, nobler, noblest. Fine. The second rule says if the positive degree ends in E, कोई भी positive degree की spelling में last में अगर E है तो हमें क्या करना है? उसकी comparative degree form करने के लिए उसमें खाली क्या ऐड करना है बेटा? R. And superlative degree form करने के लिए क्या ऐड करना है? ST. So this you need to keep in mind. This is the second rule. If the positive degree has got E at the end of its spelling, अगर positive degree की spelling में E है last में तो हमें उसकी comparative degree form करने के लिए उसमें बस R ऐड करना है और superlative degree form करने के लिए उसमें हमको खाली ST ऐड करना है. बस बेटा आपको ये याद रखना है. So I hope that this is clear to you, students. Now the second. Okay. The second student is whiter is given. Whiter दिया हुआ है बेटा. Now we have to write the positive and superlative degree of whiter. अब बेटा whiter कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है, लास्ट में R है. अब इसकी हमको पॉजिटिव डिग्री बनानी तो हमें क्या करना है? We simply have to remove this R. तो क्या हो जाएगा? White. White is the positive degree of whiter. And how did we form the positive degree? By removing this R. R add करेंगे तो comparative degree, R remove कर देंगे तो positive degree. Then the superlative degree will be whitest. White already we simply had to add ST to the spelling. So you just need to keep this in mind, students, that white comparative में खाली R ऐड करना है and superlative में बेटा क्या ऐड करेंगे? ST. So white, whiter, whitest. So we have formed the positive degree from the word from the comparative degree whiter and the superlative degree whitest from the comparative degree. Now students, the third word is safe, and we need to form the comparative and superlative degree of safe. So बेटा safe की spelling लिखी, उसमें खाली आप क्या ऐड करोगे? R. तो safe से safer क्या फॉर्म हो गया? Comparative degree.
Now we want to form the superlative degree from the positive degree safe. So what we'll do, we'll simply add ST. So safe, safer, safest. Got it? अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसके लास्ट में ई आता है स्पेलिंग में, तो आपको उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए क्या करना है, उसमें बस आर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसमें आपको बस बेटा एस टी लगाना है. देन द फोर्थ वन, लास्ट में बेटा इसमें सुपरलेटिव डिग्री मेंशन्ड है एबलेस्ट. ओके, नाउ लुक एट द वर्ड एबलिस्ट, इसमें एस टी लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबल लिखेंगे. एबल लिखा, एस टी को रिमूव करके क्या लगा दिया हमने, आर, तो क्या हो गया, एबलर. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. एंड पॉजिटिव डिग्री हम क्या करेंगे बेटा, हम आर भी रिमूव कर देंगे, खाली एबल, तो दैट इज द पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट. सो एबल, abler, ableist. Again I am repeating rule number B students, that if positive degree ends in E, आप देखो जितने भी एग्जाम्पल्स है सबके लास्ट में E है, और इनकी हमको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, तो हमको इनके लास्ट में खाली क्या ऐड करना है बेटा, R. R, 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 R. और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करना है तो हमको लास्ट में क्या ऐड करना है बेटा, ST. यू कैन सी ST, ST, ST. So this is rule number 2. Noble, nobler, noblest. White, whiter, whitest. Safe, safer, safest. And able, abler, ablest. So students, we have learned now 2 rules to form comparative and superlative degrees from the positive degree. Rule number A is, generally हम कोई भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कंपैरेटिव के लिए हम ER ऐड करेंगे, एंड सुपरलेटिव के लिए हम क्या ऐड करेंगे बेटा, EST. देन रूल नंबर B सेज, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E, अगर पॉजिटिव डिग्री की स्पेलिंग के लास्ट में E है, तो हम उसका कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए उसमें खाली क्या ऐड करेंगे बेटा, R, R, R. एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, ST, ST, ST. So this you need to keep in mind. So I hope rule number B is clear to you students. Now I'll erase this and then I'll explain the third rule. Now students, rule number C. Let's see what rule number C says. When the words end in Y, preceded मतलब उसके पहले, preceded मतलब Y के पहले, preceded by a consonant Y is changed into I before adding ER and EST. This is the third rule, students. Now I'll explain the third rule, students.
positive degree, comparative degree, and superlative degree. Now, look at the spelling of happy students. Now, what does this rule say? When the words end in Y preceded by a consonant. I hope all of you are aware what vowels and consonants are. There are 5 vowels in the alphabets, that is A, I, E, O, U. बेटा ये 5 क्या होते हैं? Vowels होते हैं. A, E, I, O, U and rest of the alphabets are all consonants. ये आपको याद है तो well and good, but if you don't remember, please learn this. That आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें बेटा 5 वॉवल्स होते हैं. A, E, I, O, U. These alphabets are known as vowels, whereas the rest of the alphabets are consonants. तो the rule says कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसके लास्ट में क्या है बेटा? Y है. हैप्पी की स्पेलिंग में HAPPY, Y है. एंड Y के पहले क्या है? कौन सा अल्फाबेट है? P. अब P क्या है? कॉन्सोनेंट है. P क्या है? कॉन्सोनेंट है. Y स्पेलिंग में लास्ट में Y हो और Y से पहले प्रीसीडेड मतलब उससे पहले, प्रीसीडेड उससे पहले, Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे इस रूल में? उसको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हैप्पी में लास्ट में क्या था बेटा? Y था और Y से पहले क्या था बेटा? कॉन्सोनेंट P था. तो हम Y को रिमूव करेंगे. Y की जगह क्या आ जाएगा? I. और हमने रूल नंबर A में क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव से हमको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं बेटा? ER. तो हमने क्या ऐड कर दिया? ER, है ना. Y को रिमूव करके हम क्या बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे? I. Y इज सब्स्टिट्यूटेड बाय I. Y को रिमूव करेंगे और उसकी जगह किससे रिप्लेस करेंगे? I से. ये कब करेंगे? जब स्पेलिंग के लास्ट में Y हो पॉजिटिव डिग्री के एंड Y से पहले क्या हो बेटा? Y से पहले एक कॉन्सोनेंट हो. ये उस केस में हम ये करेंगे. ठीक है. अब ये तो हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई. अब सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? सेम वील राइट हैप्पी. Y को रिमूव करेंगे. Y किससे, किस अल्फाबेट से रिप्लेस होगा बेटा? I से. और रूल नंबर A में हमने क्या सीखा था? पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? बाय एडिंग EST. तो हम इसमें क्या लगा देंगे? EST. सो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना. हैप्पी इज खुश. हैप्पियर क्या हो गया? थोड़ा और, थोड़ा ज्यादा हैप्पी. एंड सुपरलेटिव डिग्री तो ग्रेटेस्ट है, सबसे खुश, है ना. पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम किसी को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या कोई दो चीजों को हम इक्वल मानते हैं जहां कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होता. एंड कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू पर्सन्स, टू ऑब्जेक्ट्स. तो कोई ज्यादा कोई कम. तो जब दो में कंपैरिजन है तो कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव. एंड सुपरलेटिव कब यूज करेंगे? जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? सुपरलेटिव डिग्री. अभी हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री whose spelling has got Y at the end. स्पेलिंग के लास्ट में क्या है बेटा? Y है. और Y से पहले preceded मतलब पहले, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो. as I said, अल्फाबेट्स कितने हैं आपके? 26. उसमें से 5 अल्फाबेट्स दैट इज A, E, I, O, U ये वावल्स हैं. और वावल्स के अलावा जितने भी बचे हुए अल्फाबेट्स 21 है वो सब कॉन्सोनेंट्स है. तो A, E, I, O, U को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट अगर Y के पहले है तो वो कॉन्सोनेंट है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम पहले Y को रिमूव करेंगे. Y को रिमूव करके किस अल्फाबेट से रिप्लेस करेंगे? I से. I से रिप्लेस करेंगे. कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करेंगे
एंड सुपरलेटिव डिग्री में y को रिमूव करके I लिख के क्या ऐड करेंगे, EST. सो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. आई होप कुछ समझ में आया आप लोगों को. नाउ दी सेकेंड वन. इसमें बेटा इसकी कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, होल ईयर. नाउ वी नीड टू राइट द पॉजिटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. किसकी हमको लिखनी है, होल ईयर की लिखनी है. तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले HOLIER. तो सबसे पहले हम RIER इन चीजों को नोटिस करेंगे कि ये तो आएगा नहीं, क्योंकि तो हम उससे पहले वाले 3 अल्फाबेट्स लिख लेंगे, HOL. अब I किसकी जगह रिप्लेस हुआ है, Y. तो हम होली लिख देंगे. एंड पॉजिटिव डिग्री में तो ये ER EST कुछ लिखना नहीं है, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई बेटा, होली. होली. अब हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में HOL. होली की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, होली में Y के पहले L है, कॉन्सोनेंट है. सो वी विल रिमूव Y, replace it with I, and then we will add EST. So holy, holier, holiest. अगर आपको रूल पता है और कोई भी एक डिग्री दी है तो आप आराम से बाकी की 2 डिग्रीज लिख सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड टू बी थरो विद द रूल्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग रूल नंबर C, that is, if any positive degree has got Y at the end in its spelling, preceded मतलब पहले, and Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, Y को रिमूव करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, I से. एंड उसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, ER. तो ये कंपैरेटिव हो जाएगी. एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, Y को I से रिप्लेस करेंगे और उसके आगे क्या ऐड कर देंगे बेटा, EST. नाउ the third one, students, third one is, थर्ड में आपकी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, दैट इज सिलीएस्ट. फाइन. अब हमको इसकी कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री लिखनी है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे. तो अभी आपको इतने वर्ड्स तो पता है कि EST ऐड हुआ है, I किससे रिप्लेस हुआ है, Y से. तो EST हटा के हम पहले तो शुरू की स्पेलिंग IEST हटा के लिख देंगे SILL. और हम I की जगह बेटा क्या लिखेंगे, Y, क्योंकि Y को हटा के तो हमने I लिखा है ना. तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई. अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, SILL. Y को किससे रिप्लेस करेंगे, I से, और क्या ऐड कर देंगे बेटा, ER. तो सिली, सिलियर, सिलीएस्ट. Silly, sillier, silliest. Now students, I hope this is clear कि any positive degree which has got Y at the end of its spelling preceded by a consonant. किसी भी positive degree की spelling में अगर last में Y हो और Y से पहले अगर consonant हो तो आप क्या करोगे, comparative degree उसको फॉर्म करने के लिए Y को रिप्लेस करोगे I से, ER ऐड करोगे. सुपरलेटिव डिग्री में क्या करोगे, Y को रिप्लेस करोगे I से और EST ऐड करोगे. नाउ द फोर्थ वर्ड इज डर्टी. डर्टी दिया है. अब डर्टी की हमको बेटा पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री दोनों लिखनी है. सो डर्टी की स्पेलिंग में लास्ट में Y है, Y से पहले T है, Y is preceded by T. तो हम क्या करेंगे, we will write DIRT. Y को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, I से, और क्या ऐड करेंगे, ER. तो डर्टी की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, डर्टियर. DIRTIER. नाउ अब इसकी
सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या करेंगे, DIRT, y को I से रिप्लेस किया एंड क्या लिख दिया बेटा, EST. सो dirtiest, dirty, dirtier, dirtiest, dirty, dirtier, dirtiest. Got it students? Now the fifth one. इसमें बेटा कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, wealthier. And now we need to write the positive degree and the superlative degree of wealthier. So students, what we will do? सबसे पहले तो हम यहां तक की स्पेलिंग, जो IER को हटा के पहली वाली स्पेलिंग लिख लेंगे, that is wealth. फिर I की जगह क्या लिख देंगे बेटा, Y. तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, wealthy. Now how to form the superlative degree? Simply we will replace ER with EST. Rest of the spelling will remain the same. So WEALTHIEST. I किसको रिप्लेस किया, Y को, और EST तो लगना ही था as per rule 1. Fine. So wealthy, wealthier, wealthiest. Wealthier was given and we had to write the positive degree and the superlative degree. So I hope students, rule number 3 is clear to you. What does rule number C says? When the words end in Y preceded by a consonant, Y is changed into I before adding ER and EST. ये दिमाग में रखना है कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसके स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है बेटा, Y आता है, सो हमको Y को रिमूव करना है. किससे रिप्लेस करना है, I से. एंड पॉजिटिव डिग्री में Y है लास्ट में, तो कंपैरेटिव डिग्री में Y को I से रिप्लेस करेंगे, ER ऐड करेंगे. एंड सुपरलेटिव डिग्री में Y को I से रिप्लेस करेंगे और EST ऐड करेंगे. लेट्स रिवाइज once again, then I'll explain it once again. Fine. Happy, happy की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, Y है. Y के पहले कॉन्सोनेंट P है. होली की स्पेलिंग में देखो लास्ट में क्या है, Y. Y से पहले क्या है, L है, जो कॉन्सोनेंट है. सिली की स्पेलिंग में क्या है, लास्ट में Y है. Y से पहले L है. L क्या है, कॉन्सोनेंट है. डर्टी की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा, Y है. Y से पहले क्या है, T है, विच अगेन इज अ कॉन्सोनेंट. एंड वेल्दी की स्पेलिंग में लास्ट में Y है, Y के पहले H है. तो एनी पॉजिटिव डिग्री जिसकी स्पेलिंग में बेटा लास्ट में Y है एंड Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हमको Y को किससे रिप्लेस करना है, Y को रिमूव करके I लिखना है और आपको क्या ऐड कर देना है, ER. ये याद रखो. अब सारी स्पेलिंग्स में इफ यू लुक, हमने Y को किससे रिप्लेस किया है, I से, और क्या ऐड किया है, ER. Y को किससे रिप्लेस किया, I से, और क्या ऐड किया है, ER. डर्टी की स्पेलिंग में Y को किससे रिप्लेस किया, I से, और क्या ऐड किया है, ER. सो ये तो कंपैरेटिव डिग्री हमने फॉर्म की. Y को I से रिप्लेस करना है और क्या ऐड किया है बेटा, ER. सेम वे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको क्या करना है, Y को I से रिप्लेस करना है और EST ऐड करना है. Y को I से रिप्लेस करना है और क्या करना है, EST ऐड करना है. Y को I से रिप्लेस करना है बेटा और क्या ऐड करना है, EST. रिप्लेस Y with I and add EST. Replace Y with I and add EST. So I hope that this rule is clear to you students. The first rule says कि most of the adjective degrees, उनकी जो पॉजिटिव डिग्री है उनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बेटा कैसे फॉर्म करते हैं. कंपैरेटिव के लिए हम उनके लास्ट में ER लगाते हैं एंड सुपरलेटिव के लास्ट में EST लगाते हैं. रूल नंबर 2 सेज कि वो पॉजिटिव डिग्री जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में E आता है, तो उनका कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए हमको उसमें खाली R लगाना है एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए उसमें हमको क्या लगाना है, ST. E नहीं लगाना है क्योंकि E तो ऑलरेडी स्पेलिंग में है. एंड रूल नंबर C सेज
that if the positive degree has got e at the end of its spelling, आपको क्या करना है, y at the end of its spelling, y अगर इन सब की स्पेलिंग के एंड में है एंड y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे, उस y को अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो y को रिमूव करके I लगाना है और उसमें ER ऐड करना है, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो y को रिमूव करके I लगाना है और EST ऐड करना है. So students, these were the 3 rules. I hope students that all the 3 rules of degrees of comparison are clear to you students. Now, please revise the rules again and again so that the concept is clear to you. That's all for today. Thank you students. But do revise all the taught units of English grammar. Good day students.